All right, so we are going to do kinds of pronouns today. I'll share the screen first. So let us see. Okay, I hope my screen is visible. Please, nobody will scribble on the screen. All right, so let us get started. So please switch on your cameras first of all, everybody, and sit attentively. बिल्कुल सीधे होके बैठना आप लोगों ने, smartly. Only then you will be able to understand. Okay. All right. So we are going to do this chapter of pronouns and the kinds of pronouns today. Now, before we start with the kinds of pronouns, first thing we need to know is what are pronouns. Now, I always tell pronoun. आप इस word को read करो जरा सारे. Read this word pronoun. तो इसका मतलब जब भी आप ये read करेंगे, इसमें noun word आ रहा है ना noun word. So आप इसको जब भी read करेंगे तो आपको बड़ा easy हो जाएगा याद रखना. Pronouns are the words that are used in place of the noun. ऐसे words जो noun की जगह पे यूज किए जाते हैं. ठीक है. सो इसके नेम जब आप रीड करोगे उसमें प्रोनाउन जब पढ़ोगे ना तो आपको क्विकली उसी टाइम याद आ जाएगा. प्रोनाउन मतलब नाउन. नाउन आ रहा है ना. सो नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस कहलाते हैं. लेट अस सी हियर. अब प्लीज योर आईज शुड रीड व्हाटएवर आई एम रीडिंग. जो मैं बोल रही हूँ वो आप रीड करेंगे अपने आईज के साथ. यू कैन ऑल्सो स्पीक by muting yourself. So what is a pronoun? A pronoun is a word which is used in place of a noun. That I have already told. Pronoun is the word that is used in place of noun. हम किसी का नाम ले रहे हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. Suppose I'm talking about a boy called Rahul. So मैं बार बार उसके हर बार जितनी भी बार उसके बारे में बात करती हूँ. राहुल ये करता है, राहुल ऐसे करता है, राहुल ऐसे करता है. So what I'm doing, मैं राहुल नाम जो है उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ. बट जब हम सुनते हैं तो दैट डजंट लुक गुड. वो अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार एक ही नाम को रिपीट करी जा रहे हैं. सो व्हाट वी डू, हम उसके नाम की जगह कई बार कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं और उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं. लाइक आई से राहुल इज माई ब्रदर. ही इज राहुल इज वेरी नाइस. राहुल लाइक्स टू ड्राइव अ कार. सो मैं बार बार क्या कर रही हूँ, राहुल नाम रिपीट कर रही हूँ. अब इसकी जगह क्योंकि सुनने में बार बार राहुल राहुल सुनाई दे रहा है, इसकी जगह मैं बोल सकती हूँ राहुल इज माई ब्रदर. ही इज वेरी स्मार्ट. ही लाइक्स टू ड्राइव द कार. एवरीबडी लाइक्स हिम. सो यहाँ पे मैंने राहुल की जगह उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए, ही वर्ड यूज किया और हिम वर्ड यूज किया. सो दीज टू वर्ड्स आर कॉल्ड द प्रोनाउंस. दीपाक्षी बेटे, व्हाई यू आर होल्डिंग द बेबी इन योर हैंड? अटेंड योर क्लास. वेयर इज योर ममा? Okay, so let us see the example that is given here. Sweetie is my sister. Now, sweetie is the name. It is a naming word. It is a noun. Now, in the next sentence, instead of repeating the word sweetie, मैंने सोचा कि sweetie बार बार नहीं repeat करना. उसकी जगह मैंने pronoun use किया. I said she always stands first in the class. She is also a good actor. So यहाँ मैंने next two sentences में sweetie word को repeat नहीं किया, उस noun को repeat नहीं किया. उस noun की जगह मैंने pronoun use किया. कौन सा pronoun? She. Clear? So these are the words which are used in place of the noun. Now we are going to cover these types of pronouns. Please look here. Everybody be attentive, bete. I can see some of you looking here and there. Personal pronouns, reflexive pronouns, emphasizing pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and relative pronoun. Now, this relative pronoun is actually a separate chapter in your book. ये next chapter है इससे. So हम आज relative pronoun नहीं करेंगे. We'll do this separately in the next class. Okay. So we'll be covering the rest of the 6 types. So let us get started with the first one. The first one is personal pronoun. Personal means personal में अपने याद रखना. Personal means जो person के लिए use होते हैं. ठीक है. So personal pronouns कौन कौन से होते हैं? Now before we discuss the personal pronouns, मैं आपको याद है कि हम जब भी आपको पढ़ाते हैं pronouns के बारे में आपको 3 kinds of person बताते हैं. Do you remember? First person, second person, third person. Navdeep, who is called the first person? Quickly, please tell me. Unmute yourself, Navdeep. Hanji, who is called the first person, bete? Do you know? Do you remember that? Hanji, बोलिए जल्दी बोलिए. Unmute yourself quickly, bete, fast. We don't have time. Yes, Navdeep, you are muted, bete. Unmute yourself and tell me who is called the first person. Even if you don't know the answer, unmute yourself and say, "Ma'am, I don't know." Okay? Don't sit like this. First person is known as the speaker. Excellent. Yes. A first person हम किसको बोलते हैं जो बोल रहा है. Now I am speaking here, so I am the speaker and I'll be called the first person, a first person, right?
Yes, Japnu, who is called the second person? Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, You? Me? Okay, so I can understand what you are saying. Second person बोलते हैं listener को. Like मैं बोल रही हूँ, I'm the speaker, I'm the first person. आप सारी मेरी बातें सुन रहे हैं. So you all are the second person. ठीक है, जो भी बोल रहा है, अगर जपनूर बोलेगा तो जपनूर स्पीकर हो जाएगा एंड ही विल बिकम द फर्स्ट पर्सन, और मैं सुनूंगी तो आई विल बिकम द सेकंड पर्सन. सो हूसोएवर इज स्पीकिंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, और जो उसकी बातें सुन रहा है, दैट विल बी कॉल्ड द सेकंड पर्सन. राइट, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज थर्ड पर्सन. हु विल टेल मी व्हाट इज हु इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन? Dipakshi, can you tell me? Dipakshi, can you tell me? Yes, ma'am. Yes, Dipakshi, quickly. Yes. Yes, Dipakshi. Who's called the third? Ma'am, like he, ma'am, I think Dipakshi, mute yourself. I think you're saying he, है ना? Because your voice was not clear. That is correct. Hiteshi, you tell me quickly, bete. मैम थर्ड पर्सन मैम वो होता है मैम जिसके बारे में मैम जो स्पीकर होता है मैम वो बात कर रहा होता है. Yes, speaker नहीं speaker. Okay, it is not I. Speaker नहीं होता. So speaker जिसके बारे में बात कर रहा है, first person जिसके बारे में बात कर रहा है second person से, वो पर्सन हम थर्ड पर्सन कहते हैं. ना पर्सन डजंट मीन कि वो पर्सन ही होगा. पर्सन का मतलब होता है वो कोई भी नाउन हो सकता है. ठीक है, दैट कैन बी अ एनिमल, दैट कैन बी अ प्लेस, अ थिंग और अ पर्सन. ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन मीन्स द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर, एंड थर्ड पर्सन इज द वन अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. राइट, अगर सपोज मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मैं आपसे राहुल के बारे में बात कर रही थी, तो राहुल विल बिकम द थर्ड पर्सन हियर. राइट, सो अब हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं. लाइक मैं अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करती हूँ, मैं अपना जब अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं श्रेय वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ ना अपने लिए. अपने लिए क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? आई. सो आई हेयर इज द पर्सनल प्रोनाउन. ये यूज होता है सिंगुलर के लिए. अगर मैं अकेली बोल रही हूँ तो मैं आई वर्ड यूज करूंगी. अगर मेरे साथ एक और टीचर है, दो टीचर्स बात कर रहे होते आपके साथ, तो हम अपने लिए क्या वर्ड यूज करते? वी, है ना? दो टीचर्स बोलते तो वही वर्ड यूज करते. सो आई का प्लूरल हो गया वही. ठीक है, मी. अब आई और वही जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी, इफ आई से एवरीबडी लाइक्स मी, मुझे सारे पसंद करते हैं, सो मी वर्ड हियर इज अ अगेन प्रोनाउन, बट वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द, ये आपने लर्न करने हैं अच्छे से. सो फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई, वी, मी, अस, माइन एंड अवर्स भी एक्चुअली, अदरवाइज इनको हम पजेसिव में लेते हैं. ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड इन पजेसिव, लेकिन ये हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं. बट अगर आप सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन आपको कहा जाएगा पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउन, तो वहां आप माइन एंड अवर्स को नहीं करेंगे. यू विल पिक आउट ओनली आई, वी, मी एंड अस. सेकंड पर्सन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? यू. यू, मैं आपसे अगर अकेले हितेशी से बात करूं तब भी यू ही यूज करूंगी सिंगुलर के साथ. अगर मैं आप सबसे बात करूं तब भी मैं आपके लिए यू ही यूज करती हूँ. तो आपको पता है कि यू जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. ठीक है, योर्स. अब अगेन मैंने यहाँ योर्स लिखा है, बट दिस इज पजेसिव. ये पजेसिव है तो इसको पर्सनल में नहीं लेंगे आप. ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको कि ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है. ओके, थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज होता है? थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है अगर एक बॉय है, जैसे मैंने राहुल का एग्जांपल लिया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही या फिर हिम. गर्ल है तो शी या फिर हर. अगर बहुत सारे लोग हैं या वन से ज्यादा हैं तो दे या फिर देम. और अगर कोई बर्ड है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर एनिमल है, तो उसके लिए इट. जैसे डॉग के लिए इट यूज करते हैं. फैन है, एक फैन है तो इट यूज करेंगे. Okay, so these are all about the personal pronouns. Is this clear? Please show your thumbs if it is clear. Yes, all right. Let us move further. अभी reflexive हम बाद में करते हैं, हम पहले करेंगे possessive pronouns. Please look at the screen now. Yes, बेटा. मैम हर और हर्स में क्या फर्क होता है? हर मतलब I love her. मैं उससे प्यार करती हूँ. हर, ठीक है, वो गर्ल है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया.
दिस बुक इज हर्स, ये बुक उसकी है। हर्स जो है वो possessive वर्ड हो जाता है, दैट इज अ possessive वर्ड, ठीक है। possessive pronoun है hers। अभी हम यही करने लगे हैं। प्लीज लुक हियर एट द स्क्रीन। सचिन लिव, इज योर कैमरा ऑन बेटे? आई कैन सी स्टिल so many students whose cameras are not on. Okay, now let us quickly look at this yellow box. Yellow box में मैम yes बेटे। मैम जो मैम आपने जो हमें चैप्टर 7 भेजा है वो हमें करना है, और मैम उसमें एक्सरसाइज 2 में थर्ड लाइन में आया है काव्या काव्या काव्या, लिसन टू मी काव्या, बेटा अभी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो अगर आपको प्रोनाउंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे से वो पूछिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप या तो क्लास एंड होने के बाद यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉल मी, ठीक है बेटे। लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट वी आर, है ना, क्योंकि ऐसे ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका भी और हमारा भी। So please look at the words that are given in the yellow box. मैंने yellow box में सारे possessive pronouns लिखे हैं। ये सारे words हमेशा possessive pronouns ही होते हैं, ये adjective नहीं बनेंगे। So what are the words? Mine, mine means मेरा। Ours, ours मतलब हमारा। Yours, yours means आप सबका। His, his means उस boy का। Hers, hers मतलब उस girl का। Theirs, theirs means उन सबका। So एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो possessive pronouns है सब s से end हो रहे हैं, है ना ऐसा। अवर के साथ एस लगा हुआ है, योर के साथ एस लगा हुआ है, हिज तो ऑलरेडी एस से ही एंड होता है, हर के साथ भी एस लगा दिया, देयर के साथ भी एस लगा दिया। सो जो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सारे आप नोटिस करेंगे दे ऑलवेज एंड विद अ एस, ठीक है। ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। एक माइन जो है वो एस से एंड नहीं होता, बाकी सारे एस से एंड होते हैं। Now let us see a pronoun that shows possession. ऐसा pronoun जो किसी चीज में किसी का possession दिखाता है कि वो चीज किसको belong करती है, उसको हम बोलते हैं possessive pronoun. Okay, now please look here, look at the first sentence. This pen is mine. ये पेन मेरा है। सो माइन वर्ड बता रहा है कि पेन किसका है, पेन मेरा है। सो माइन हेयर यहाँ पे क्या है, possessive pronoun है। Now let us look at the next sentence. This is my pen. अगेन इसकी अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका बनेगा ये मेरा पेन है। अगेन यहाँ माय वर्ड भी बता रहा है कि पेन मेरा ही है, पोजेशन ही बता रहा है, लेकिन माय वर्ड के पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पे नाउन आ रहा है। पेन इज अ नाउन, सो यहाँ पे माय वर्ड क्या बन गया, पोजेसिव। यस सितेशी, व्हाट इज इट? इट इज पोजेसिव। मैम possessive adjective। वेरी गुड। नाउ माय वर्ड यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया है, वो प्रोनाउन नहीं है। सो पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों का काम सेम है, दोनों यही करेंगे कि बताएंगे कि वो चीज किसकी है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस के पीछे कभी नाउन नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट इज दैट अ डॉल इज हिज, वो डॉल उसकी है। हिज, जो हिज वर्ड है ना ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन, सिर्फ एक अकेला हिज वर्ड है जो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, हमने यही चेक करना है कि उसके पीछे नाउन आ रहा है कि नहीं। नाउ दिस दैट डॉल इज हिज, ये डॉल उसकी है। यहाँ हिज वर्ड पॉजेसिव वर्ड है, लेकिन क्या इसके पीछे नाउन आ रहा है? नो, इसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है, सो इट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दैट इज हिज डॉल, ये डॉल उसकी है। अगेन हिंदी में मीनिंग सेम है दोनों का। यहाँ पे हिज वर्ड दोबारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन हिज के पीछे क्या आ रहा है, डॉल, नाउन आ रहा है। सो यहाँ पे हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सचिन, इज इट क्लियर टू यू? सचिन, इज इट क्लियर टू यू? सचिन, आई एम आस्किंग यू, इज इट क्लियर टू यू? एंड सचिन, यू Yes. हाँ बेटा उठ के बैठिए प्लीज, आई थिंक यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड। Okay, now let us look at the last sentence. Those books are theirs. ये books क्या हिंदी में मीनिंग बना? ये बुक्स उनकी हैं, ठीक है। सो theirs, s वाला वर्ड है theirs, और इसके पीछे कोई नाउन भी नहीं आ रहा, सो इट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है those are their books, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हिंदी में इसका मतलब यही है कि ये उनकी बुक्स है, लेकिन देयर वर्ड के पीछे नाउन आ रहा है, सो इट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? ये भी आपको मेरे को लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन दिस। नाउ क्विकली विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अगेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इंट्रोगेटिव
इंटेरोगेट करने वाले, क्वेश्चन करने वाले, ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज। लेकिन क्या डिफरेंस है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में? यस, विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? जल्दी से अवनी विल टेल मी। अवनी बेटा टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जल्दी से बताइए अवनी। एक्सक्यूज मैम, मैम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मैम इनके आगे मैम नाउन आता है। वेरी गुड। एंड मैम इंट्रोगेटिव पर प्रोनाउन में नाउन नहीं आता इनके आगे। वेरी नाइस। सो ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट, ये आपको सबसे इजी वे है पता करने का कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नाउन से वो उसके आगे नाउन नहीं आता, सिर्फ एडजेक्टिव्स में नाउन्स आता है। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स हियर। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? नाउ व्हाट हियर इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड है, लेकिन उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, उसके बाद में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ठीक है, इज इज अ वर्ब। सो इसीलिए व्हाट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बनेगा, इट विल बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, whose is this bag? whose के बाद is आ रहा है, अगेन इट इज अ वर्ब, सो इट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ सेंटेंस होता whose bag is this, whose bag is this, तो whose के बाद बैग आ रहा होता, फिर whose क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट है which of these dresses is yours? which के बाद of these dresses, of these आ रहा है, not dresses, dresses बाद में आ रहा है, नाउन बाद में आ रहा है, exactly immediately बाद उसके नाउन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, which will be interrogative pronoun। ऐसे ही लास्ट वाला देखेंगे, whom have they appointed the captain, so whom वर्ड के बाद have आ रहा है, have is a verb, ठीक है, helping verb है ना, so again therefore it would be a pronoun। now let us move further to demonstrative pronouns। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आई टोल्ड यू कि डेमोन्स्ट्रेटिव, ट्रिप्टी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, 5 वर्ड्स याद रखना, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। मैंने आपको तब भी समझाया था कि यही वाले सेम वर्ड्स क्या बन सकते हैं, एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, और यही वाले सेम वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन सकते हैं। अगेन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद क्या आते हैं, नाउन्स आते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आएगा सेंटेंस में, वर्ब आएगा। लेट अस सी द एग्जांपल्स हियर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव मींस डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना, किसी चीज को दिखाना, ठीक है। so let us see the first example is that is my pen। now that word demonstrative word है। अब हमने next step देखना है कि क्या इसके पीछे नाउन आ रहा है, is a verb, नाउन नहीं आ रहा, so it is interrogative pronoun। अब रेड वाले इंक में जो लिखा है वो रीड करते हैं, that pen is costly। that demonstrative word है, उसके बाद क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, pen is a noun, so इसीलिए that word यहाँ पे demonstrative pronoun नहीं है, it is demonstrative adjective। clear to everybody? yes, thumbs up if it is clear। okay, now let us move further। that is your house, that again is a demonstrative word, but उसके बाद is आ रहा है, is a verb, so it is demonstrative pronoun। look at the second example in the red color। that house is old। that is a demonstrative word, लेकिन इसके बाद house आ रहा है, house is a noun, so it here that is demonstrative adjective। I hope this is clear to everybody। let us move further because okay, now look at this table I've sent you। बेटे I'll advise all of you ये table आप अपनी notebooks में बनाएं, because this is a very important thing and इसे अच्छे से learn कर लेना, इस table को आपने notebook में बना लेना है। okay, now let us see here, यहाँ पे है क्या, ये सारे pronouns हैं, ठीक है। सेम प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट बनता है, कहाँ एज एन ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, उसका पोजेसिव क्या बनेगा, उसका रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग क्या बनेगा। अब ये रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग हमने करना है, जस्ट वेट, लेट अस सी दिस चार्ट फर्स्ट। आई वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, ठीक है, वो प्रोनाउन है। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो आई की जगह मी बन जाता है। पोजेसिव मेरा, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, माइन मीन्स मेरा, myself मीन्स मैंने खुद। सो ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये मेरे लिए यूज हो रहे हैं, सिंगुलर के लिए यूज हो रहे हैं, सारे के सारे एक पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए। ऐसे सेकंड वर्ड देखेंगे वी,
वी अगेन फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन वो प्लूरल है. हम, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें, अवर्स मीन्स हमारा, अवर सेल्स मीन्स हमने खुद किया है कोई काम. ठीक है. सो ये सारे वर्ड्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए यूज हुए हैं, और ये सारे ही ऐसे सारे सेकंड पर्सन के लिए है, यू, थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, दे, इट. ठीक है. सो यू हैव टू लर्न दिस. if you face any problem, then I am there to help you. All right. Now let us move. स्कूल ग्रुप में भेज दोगे? This is actually given in your this video that I've sent you. Video में है बेटा ये सारी same slides. Same slides are sent in the video. Okay, I've used the same slides to teach you here. Now look here. Now this is very important. अब जो हम next two करने वाले हैं वो ध्यान से सुनेंगे सारे. Reflexive and emphasizing. ये इनमें वर्ड्स आते हैं. कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? दोनों में सेम वर्ड्स होते हैं. रिफ्लेक्सिव के भी सेम वर्ड्स हैं, एम्फसाइजिंग के भी सेम वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले हम देखते हैं वर्ड्स हैं क्या. वर्ड्स जो आते हैं वो इन दोनों में आते हैं, रिफ्लेक्सिव में भी और एम्फसाइजिंग में. वो वर्ड्स हैं माई सेल्फ, अवर सेल्स. अवर सेल्स क्यों बन गया? क्योंकि अवर प्लूरल है तो सेल्फ का सेल्स बन गया प्लूरल. ठीक है. योर सेल्फ, योर सेल्स भी हो सकता है. अगर मैं एक से बात कर रही हूँ, अगर मैं हितेशी के लिए बोल रही हूँ योर सेल्फ, तो हितेशी योर सेल्फ है ना. यू डू इट योर सेल्फ. अगर मैं आप सबको कह रही हूँ यू विल डू इट योर सेल्स, आप सबको कह रही हूँ तो योर सेल्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्स. अगेन देम प्लूरल है ना तो उसका सेल्स आया है, SELVES. ठीक है. सेल्फ का प्लूरल सेल्स होता है. ओके. सो ये वाले कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें योरसेल्व्स नहीं लिखा मैंने, 8. ये 8 वर्ड्स जो हैं ये सारे के सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं और एम्फसाइजिंग में भी यूज होते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वाले जो 8 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये कहाँ पे आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे. दे विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनकी प्लेसमेंट कहाँ होती है? वो कहाँ लगाए जाते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पे. यानी कि सेंटेंस में वो किसका रोल प्ले करेंगे? ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे. ओके. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. देखेंगे तब आपको क्लियर होगा. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. द फर्स्ट सेंटेंस सेज ही पनिश्ड हिमसेल्फ. उसने पनिश किया. ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है पनिश्ड, और किसको? whom का आंसर कौन दे रहा है? whom का आंसर क्या आ रहा है? he punished whom? himself. so object क्या होता है? object is a noun or a pronoun that gives the answer of what or whom. यही होता है ना object. याद करा रही हूँ मैं आपको. याद आ गया? yes. so हिमसेल्फ वर्ड यहाँ पे किसकी जगह पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है. वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं. व्हाट या हुम का आंसर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो. सीमा हिट हरसेल्फ. तो सीमा हिट हुम. किसको हिट किया सीमा ने? हरसेल्फ, खुद को हिट किया. सो हरसेल्फ वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है. क्लियर? समझ आ गया? वर्ड सेम है दोनों के, और एम्फसाइजिंग में भी यही वर्ड्स आएंगे, रिफ्लेक्सिव में भी यही वर्ड्स आएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये किस जगह पे आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे. क्लियर है? प्लीज शो योर थम्स इफ इट इज क्लियर दिस मच so that I can move further. Okay, now let us look at the third sentence. The third sentence says we blamed ourselves for the problem. We blame करना मतलब किसी पे इल्जाम लगाना. So हमने blame किया. Blaming here is a verb. So we blamed whom? whom का आंसर क्या आ रहा है? whom का आंसर है ourselves. हमने किसको ब्लेम किया? खुद को ब्लेम किया कि सारी प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है. ठीक है. सो ourselves वर्ड यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है. क्लियर? Is this much clear? Sparsh, is it clear, bete? Sparsh, is it clear? Okay, very good. Now look at this slide. She hurt herself. Now here, look at this sentence. I have also written here, she is the subject. Hurt here is the verb. Now again, ask yourself the question, she hurt whom? Whom का आंसर देना ना herself. इसका मतलब herself object है. और अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो वो कौन सा प्रोनाउन बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा. ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग होते हैं ये सारे सेल्फ और सेल्स से एंड होते हैं, और कोई वर्ड्स नहीं आते इसमें. सारे वर्ड्स सेल्फ वाले या सेल्स वाले आते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. वी ब्लेम्ड अवरसेल्व्स फॉर द प्रॉब्लम. ये हमने अभी डिस्कस किया. वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ब्लेम्ड यहाँ पे वर्ब है, एंड वी ब्लेम्ड whom.
होम का आंसर दे रहा है आवर सेल्स, सॉरी होम का आंसर आ रहा है आवर सेल्स, सो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो इसमें हमारा जो प्रोनाउन है सेल्फ वाला या सेल्स वाला, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इसीलिए वो क्या है हमारा, that's why it is what, it is our object, and that's why it is called the reflexive pronoun. Clear to everyone? इतना clear हो गया? We don't have much time बेटे, इतना clear है? Please thumbs up if it is clear, this much is clear. ओके, सेकंड थिंग हमने देखनी है, सेकंड थिंग होती है, एक तो हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। सेकंड चीज आप कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फसाइजिंग है, आपने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा वर्ब के इमीडिएटली बाद आता है, बिल्कुल वर्ब के साथ ही। देखो जरा ये सेंटेंसेस फटाफट से देखेंगे दोबारा। पनिश्ड के बाद हिमसेल्फ आया, हिट के बाद हरसेल्फ आया, ब्लेम्ड के बाद अवरसेल्फ आया, हर्ट के बाद हरसेल्फ आया, ब्लेम्ड के बाद अवरसेल्फ आया। सो दिस इज वेरी इजी वे, आप इससे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दोनों में डिफरेंस, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बाद आता है, इमीडिएटली बाद आता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सबको? सो दो चीजें आपने याद रखनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, और सेकेंडली वो हमेशा वर्ब के बिल्कुल बाद आते हैं। शुड आई मूव फर्दर बेटे? वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। अब फटाफट से एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस विल डू इट। एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस अगेन मैंने आपको बताया वही वाले सेल्फ और सेल्स वाले वर्ड्स, वही 8 वर्ड्स इसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस बनेगा रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग में? एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, देखो एम्फसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, बार बार मैं उस चीज पर जोर डाल रही हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो मैं इस चीज को एम्फसाइज कर रही हूँ आपको। सो स्ट्रेस डालना, किसी चीज पर जोर डाल के बोलना, उसे बोलते हैं एम्फसाइज करना, इसी से इसका नाम पड़ा है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, अभी कैसे आपको समझ आएगा। एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस आर यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू पुट स्ट्रेस, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि हमने अपनी बात पे जोर डालना है, बार बार मतलब किसी बात को इंपॉर्टेंस देनी है, किसी बात पे एम्फसाइज करना है। ठीक है, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स हियर। शी हरसेल्फ बॉट द क्लोथ्स। अब देखो हरसेल्फ वर्ड अगेन सेल्फ वाला वर्ड है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। शी हरसेल्फ बॉट द क्लोथ्स, शी हरसेल्फ बॉट व्हाट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स है। ठीक है, तो एम्फसाइजिंग में वर्ड सेम है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आएंगे। और इसका क्या रोल है? अच्छा चलो मैं कहती हूँ कि शी बॉट द क्लोथ्स, वो क्लोथ्स खरीद के लाई। ठीक है, मैंने सिंपल आपको एक बात बताई कि वो कपड़े खरीद के लाई है। फिर अब मैं दोबारा इस सेंटेंस को बोलती हूँ, शी हरसेल्फ बॉट द क्लोथ्स, वो खुद कपड़े खरीद के लाई है। ठीक है, तो इसमें अब क्या फर्क हुआ? हरसेल्फ वर्ड के लगाने से क्या फर्क पड़ा? हरसेल्फ वर्ड के लगाने से सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि मैं अपनी जो बात है ना कि वो कपड़े खरीद के लाई है, इस बात पे ज्यादा जोर डाल के बोल रही हूँ। वो खुद, उसने खुद ऐसे किया है। हम कब लगाते हैं वर्ड खुद ऐसे किया, है ना, जब हम अपनी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सो ये जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, उस बात पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, दैट्स इट, इनका बस इतना ही यूज है। और सेकंड, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट और हुम का आंसर नहीं देंगे। थर्ड, इनकी प्लेसमेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लगाए थे हमने? वर्ब्स के इमीडिएटली बाद में लगाए थे, लेकिन ये कहाँ लगते हैं? ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल इमीडिएटली बाद लगते हैं। शी के देखो बिल्कुल बाद हरसेल्फ आ रहा है ना, शी प्रोनाउन है, उसके बिल्कुल बाद यहाँ पे हरसेल्फ आ रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो प्रोनाउंस है, एक तो शी पर्सनल प्रोनाउन और सेकंड हरसेल्फ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मोहित हिमसेल्फ लॉक्ड द रूम। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग देखो, अगर मैं हिमसेल्फ को हटा दूं, मैं बोलती हूँ मोहित लॉक्ड द रूम, मोहित ने रूम लॉक किया। अब मैं बोलती हूँ मोहित हिमसेल्फ लॉक्ड द रूम, मोहित ने खुद रूम लॉक किया। तो इस बात में हिमसेल्फ का मैंने क्या यूज किया? उस बात को सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए यूज किया। ठीक है, सो हिमसेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। देखो क्या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, मोहित लॉक्ड व्हाट रूम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो रूम बन गया, इसका मतलब एम्फसाइजिंग जो है वो रूम की जगह, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आता। सेकेंडली, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के इमीडिएटली बाद आता है। क्लियर है बेटे? इसे आप ऑडियो को ना अच्छे से 2-3 टाइम्स सुनना, आई होप, मतलब आई एम श्योर कि आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, वी डोंट हैव टाइम नाउ, so I'll stop sharing, and if you have any problem, please